Hello students, in front of you this is Mohammad Irfan Khan. I am again here to explain another new topics from your chapter, the fundamental unit of life. Today I am going to explain or to teach you a very special topic, very important topic from the chapter cells, and the structures is known as mitochondria. That is also present in the case of the cytoplasm of the all cells. In the previous video we discussed about endoplasmic reticulum and types of endoplasmic reticulum. Definitely know that there are two type of the endoplasmic reticulum. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी और आज का जो स्पेशल टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी जब हम करेंगे तो उसको हम तीन हेडिंग में डिवाइड करेंगे. जैसे प्रीवियस क्लासेस में जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसको तीन पॉइंट्स में मेंशन कर रखा था, 1 2 3. फिर मुझे याद आ रहा है इसमें 4 पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट्स, ऐसे करके हम लोगों ने लर्न किए थे सारे पॉइंट्स. मुझे ऐसा याद आ रहा है. आज भी हम लोग क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी ऐसा ही डिस्कस करेंगे जिससे हमारे आपके सारी चीज़ें क्लियर हो. आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब स्टडी कर रहे होंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया देन वी सेट अप द 3 पॉइंट्स, 3 हेडिंग्स इन आवर माइंड्स. फर्स्ट हेडिंग डेफिनेशन, सेकेंड हेडिंग स्ट्रक्चर and third heading will be function. On the behalf of this 3 heading, we discuss the all points which is related to mitochondria and the important for us. Okay, now we start the definition of mitochondria. What is a mitochondria? It is a type of microscopic structures that are present in the cytoplasm that perform a specific function. We know that in case of our body and the cells have the different structures, means organ and organelles. In case of our body, human body, it is a human body and here is the cell structure. Okay, here we have the different organ, here is organelles. It is also perform the specific function in case of our body such as kidney, heart, lungs, stomach, intestine, etc. Every organ perform a specific function in our body. Due to this, we can survive easily on this earth. As well as in case of the cell, inside the cell, different structures, microscopic structures are present in the cytoplasm that perform a specific function. In the previous classes, we discussed the different type of the organelles and their function. Also, here mitochondria, and it is a very important organelles of the cell. What is the specific function of mitochondria? We will discuss in the third heading. But now it's time to the definition. What will be exactly definition of the mitochondria? Just wait. It is intracellular. It is the intracellular organelles which have double membrane, It is found in case inside the cells, inside the cytoplasm. Due to this, it is also called intracellular organelles. Okay, second point which is related to your definition, which have the double membrane structures. It's mean cell bounded organelle, and it has the 2 layers, 2 membrane, outer and inner. We will discuss about this point
in third heading. Okay, so what is the definition? It is an intercellular organism which has a double membrane. It means cell bonded organisms that are found in cytoplasm of most eukaryotic cell except RBC of human. ओके, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि ये इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। और ये मोस्टली यूकैरियोटिक की सारी सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट द आरबीसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इट इज़ अपसाइड इन केस ऑफ द RBC. It is a very important point which is related to your multiple choice type of the question and Olympiad and the GK in the board examination या another way बहुत सारी जहाँ पे ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि which cells does not have the mitochondria, give the different option in which one option will be RBC, then you go with the RBC of the humans. I hope you understand. बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। नाउ आई ड्रा ए वेरी क्लियर वेरी इजी डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, mitochondria somewhat like that. Like okay, just it is outer membrane, it is a inner membrane like that. The inner membrane show the high multiplication, sorry, not multiplication, folding like that. Yes, it is a very simplest structure of the mitochondria. Okay, you observe that here is outer membrane, here is inner membrane, in between the outer and inner membrane intracellular space are present. Membranous space. Okay, and here is also jelly-like structures are present, that is called matrix, as well as here is a ribosome is present and structure DNA are also present. Two cell organelles which have their own DNA, mitochondria as well as प्लास्टेट, क्लोरोप्लास्ट। ये दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ऐसे माइंड में रखिएगा कि इट इज़ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स
two membranous structures, double membranous structures. Outer membrane is outer membrane, inner membrane. In between the outer and inner membranous space are present. इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. As well as inside of the inner membrane show the folding, multiple folding and form the cristae. ये जो फोल्डिंग आपको दिख रही है ना, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं. ओके. एंड in this inside of the inner membrane jelly like substance, jelly like fluids are present. Here it is known as matrix, and inside the matrix very two important organelles are also present, ribosome as well as DNA. Here is ribosome and DNA both are present inside the mitochondria. ओके, आई थिंक क्लियर. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो फोल्डिंग आपको दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं. अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसके स्ट्रक्चर्स को हम, जो स्ट्रक्चर था ना, इसको हम फोर स्टेप में कंसीडर कर सकते हैं. फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट four important structure of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया का फोर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है. अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन दिख रही होगी, फर्स्ट. सेकंड आपको इनर मेम्ब्रेन दिख रही होगी. थर्ड आपको मैट्रिक्स दिख रहा है. फोर आपको कहाँ गया, यस, ये आप इसको भी देख सकते हैं. सबके कुछ ना कुछ रोल से देखिएगा. कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन. अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, तो ये होती है पोरस होती है. कैसी होगी, पोरस. पोरस आपको याद होगा, ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, होल, ठीक है, दैट आर कॉल्ड पोरस. इट इज़ अ पोरस. तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, परमिएबल होती है. परमिएबल फॉर सम आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स. क्या होगा, कुछ आयंस के लिए परमिएबल होगी. इसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, पोरस है. और ये क्या करेगी, जब पोरस है, परमिएबल है, डेफिनेटली इट इज़ अ पासेज. ये क्या करेगी, पास कराएगी, मोमेंट का अलाउमेंट करेगी इन एंड आउट. तो डेफिनेटली आयंस के लिए कुछ परमिएबल है और कुछ सम अमाउंट में स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स के लिए भी ये क्या है, परमिएबल है. बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की. सेकेंड आपका इनर मेम्ब्रेन. Inner membrane. When we talk about the inner membrane, then you find that it show the multiple folding. Show multiple folding and form cristae. And here जो इनर मेम्ब्रेन है इनकी, ये तो फोल्डिंग शो करती है. इनके पास रेस्पायरेटरी प्रोटीन्स होती है जो हेल्प करती है रेस्पायरेशन में. तो बात करते हैं सेकेंड पॉइंट्स की. शो मल्टीपल फोल्डिंग फ्रॉम क्रिस्टी, हैव रेस्पायरेटरी प्रोटीन. ये क्या आ गया, अच्छा एक चीज़ और, एक पॉइंट और हो गया. शो मल्टीपल फोल्डिंग फॉर्म क्रिस्टी एंड इंक्रीज सरफेस एरिया. ओके. In case of the inner membrane, we got the 2 points. First point, show the multiple folding and form the cristae, and it is also increase the surface area. As well as in the case of the second point of the inner membrane, have the respiratory proteins that help in the respiration. It's mean the production of ATP. कुछ points आ गए. Respiratory
respiration. I think आपको पता ही होगा what is a respiration. Do you know about the respiration? रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एटीपी का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है? एटीपी का। व्हाट इज़ द एटीपी? इट इज़ अ करेंसी ऑफ एनर्जी। करेंसी ऑफ एनर्जी, मनी है ना, मनी होती है हमारे पास, तो कोई उसकी करेंसी होती है, कोई उसकी नोट्स होती है, कोई कॉइन्स होते हैं, ठीक है। वो जो मनी है वो किस फॉर्म में है? कॉइन के फॉर्म में, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में, लाइक दैट। तो यहाँ पे एनर्जी जो है ना वो किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मीन्स एटीपी आपको शायद ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा, जस्ट वेट, मैं इस स्ट्रक्चर को गायब कर देता हूँ। आप इस डायग्राम को माइंड में रखिएगा, ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही बात करता हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे थे रेस्पायरेटरी, ठीक है। तो रेस्पायरेटरी से आया है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन से एक्चुअल गया है रिस्पायरेशन। व्हाट इज़ अ रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एटीपी का प्रोडक्शन करता है। इसमें CO2 भी गैस रिलीज होती है, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पायरेशन। तो एटीपी क्या आती है? एटीपी करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द फुल एब्रिविएशन ऑफ एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये एक करेंसी ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि क्या होता है रेस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है, प्रोडक्शन होता है। कहाँ पे होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये किस में? एक्चुअल माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता होगा रेस्पायरेशन 2 टाइप्स का होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता दूँ, रेस्पायरेशन 2 टाइप्स, एरोबिक एंड एरोबिक, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ओके, ये क्या होगा? ऑक्सीजन के एब्सेंटी में होता है। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पायरेशन प्रोसेस कंडक्ट होता है वो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो एक पॉइंट आता है, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हो गया? जो हमारे बॉडी की सेल्स में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की, वो सारी एटीपी क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। और वो एनर्जी की फॉर्म किस फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग 4 स्ट्रक्चर्स के बारे में डील कर रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया के 4 स्ट्रक्चर्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स के बारे में, आउटर मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया। आउटर मेम्ब्रेन इज अ पोरस और द परमिएबल, पोरस होगी, परमिएबल होगी फॉर द सम आयंस एज वेल एज सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द इनर लाइनिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इट शो द मल्टीपल फोल्डिंग that increase the surface area as well as it form the crystry, ठीक है। जो फोल्डिंग पोर्शन होगा that is called crystry. The inner membrane also have respiratory proteins that help in the respiration and production of ATP. What is the ATP? ATP is the currency of energy that are used by cells in the different metabolic activities, because every function of cells, every functions need the energy, require the energy, and this energy in the form of ATP we got it, cells got it from mitochondria. Okay, now we talk about inner membranous space. Inner membranous space
जो क्या था, आउटर लाइंग इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट था, ठीक है। इसकी एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली हैव फ्लूइड लाइक साइटोसोल. What is cytosol? Liquid part of cytoplasm. Liquid part of cytoplasm is known as cytosol. तो इनर मेम्ब्रेनस स्पेस जो था वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में साइटोसोल प्रेजेंट था, ठीक है। साइटोसोल क्या है, इट इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म होता है, उसका लिक्विड पोर्शन जो होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। तो साइटोसोल के तरीके से, साइटोसोल के जैसा, लाइक दैट साइटोसोल fluid are also present in inner membranous space. Now we talk about the fourth point, matrix. What is a matrix? It is a jelly-like substance inside the inner membranes. Inner membrane के inside क्या होता है, jelly-like substance present होता है, उसे हम क्या कहते हैं, matrix कहते हैं. In the case of the matrix, most metabolic activity found. Most metabolic activity found in case of the matrix, DNA and ribosome also present. Okay, I think it is this content have the maximum point of the point related to the structures of mitochondria. Okay, तो ये भी पॉइंट था, मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मैट्रिक्स में होती है। और डीएनए क्या है, डीएनए, हाँ ये पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, और ये जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का, इस एम्प्टी डीएनए, आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा है, एम्प्टी डीएनए, ठीक है, एम्प्टी डीएनए, क्लियर। और बात हो रही थी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आरबीसी में एब्सेंट होता है, इट इज़ अ स्पेशल पॉइंट। एक पॉइंट और है यहाँ पे, ईच ओके, लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो था कि एच ह्यूमन सेल्स हैव द 100 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल। एक सिंगल सेल में ह्यूमन बीइंग की जो सेल्स है, बहुत सारी सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर फाउंड इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ड्यू टू दिस वी आर आल्सो कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एवरी सेल्स, जो हमारी सेल्स हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और वो 100 से 100 से लेकर 1000 तक हो सकता है, वेरिएबल होता है, कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन कॉमन सा पॉइंट ये मेंशन कराने की इंडिकेशन ये था, इस पॉइंट को बताने का इंडिकेशन ये था कि हमारी जो सेल्स होती हैं उनके पास मिनिमम 100 या फिर 1000 से भी ज़्यादा क्या हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं एक सिंगल सेल में। नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शन। सो जस्ट वेट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स फाइनली। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शन। एक्चुअली पहले ही हम लोगों ने फंक्शन को देख लिया है। इट जनरेट, अगर सिंपल वे में ऐसे कहूँ तो मैं इट जनरेट एटीपी, ओके, बाय the process of respiration.
और वो भी रेस्पायरेशन कैसा होगा, एरोबिक। ओके, रेस्पायरेशन, एक्चुअल रेस्पायरेशन में हुआ गया था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जैसे हम ग्लूकोज, शुगर भी कह सकते हैं, शुगर को ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा था, रिएक्शन करा रहा था, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता था, ब्रेकडाउन होता था, जिससे क्या प्रोडक्शन होता था, एटीपी। व्हाट इज द एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, करेंसी ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ करेंसी ऑफ एनर्जी। कैसे मिल रही थी, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता था, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या होता था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और इस पूरे फिनोमेनन को हम रेस्पायरेशन कहते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था रेस्पायरेशन, इसलिए हम एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं। और फाइनली वी गॉट इट द एटीपी, ठीक है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द मेन फंक्शन, a special function, important function is that the production of या generating of ATP, adenosine triphosphate। आई थिंक क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स, और वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, बट रिक्वेस्ट है कि बहुत ही नीट एंड क्लीन, मतलब बहुत ही रिलैक्स होकर सारे पॉइंट्स को मेंशन किया कीजिए, ड्रा किया कीजिए माइंड में। और जो भी आपके इसके बाद मैं टेस्ट मोस्ट पे आपका जो ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ, वो सारे पॉइंट इससे रिलेटेड होते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर thank you so much for observing this video. We will meet soonly in next video and with a new topics, new organelles. Okay, again thank you so much.